हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। चलिए, तो अपना टॉपिक जो आज का है वो टॉपिक है लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। इट इज लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग कि हम भाई ओलियम की अगर बात करें तो ओलियम का अपने पास जो फॉर्मूला है वो है H2S2O7। इट इज ओलियम। बनता कैसे है अगर हम बात करें तो जैसे so when H2SO4 react with SO3 it will form ओलियम। ठीक है। नाउ ओलियम सैंपल contain two type of SO3, contain two type of SO3। ठीक है। तो अगर बात की जाए अभी दो तरह से कैसे मिलता है हमारे को ये, तो टॉपिक देखें आप। we can say first one is called free SO3। it is that SO3 which react with water to give H2SO4 when oleum react with water। It means when this oleum react with water, so that amount which is free to react, you can say. Okay, it means you can say like H2O liquid we have, so that SO3 which is reacting with it and is forming H2SO4। ठीक है, बन रहा है अपने पास ये। सेकंड है that SO3 which is present in H2SO4 itself is known as combined SO3 and does not react with water। मीन्स ये वाटर के संग रिएक्शन नहीं कर पाएगा। वेरेज जो हमारे पास फ्री SO3 था ना अपना, वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबलिंग ऑफ ओलियम। लेबलिंग
of oleum it is defined by a number which is greater than 100, यानी वो नंबर जो 100 से ज़्यादा है, and you can say the excess number than 100 represent the amount of water. Okay, 100 represent the amount of water in gram it is required to react, or we can say required to destroy free SO3 completely in 100 gram of oleum सैंपल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा है 109% ओलियम सैंपल हमारे पास है, इट मीन्स ध्यान दें 100 से कितना नंबर ज्यादा बेटा इसके अंदर 9, इट मीन्स दैट 9 ग्राम ऑफ H2O is required to destroy the free SO3 completely in 100 gram of oleum sample। ठीक है, अच्छा समझे दोबारा से एक बार इस चीज को देखिए, हमने कहा है कि भाई हमारे पास जो ओलियम का सैंपल है वो कितना है, 109% ओलियम सैंपल है। तो ध्यान से देखा हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि 100 से जितना भी ज्यादा है वो अपने पास है लेवलिंग ऑफ ओलियम, तो वो कितना नंबर आ रहा है 9। इट मीन्स जो 9 ग्राम जो अपना एक्स्ट्रा वहां पे हम कहें ना वाटर जो रिप्रेजेंट हो रहा है 9 ग्राम है, वो क्या अपना वाटर है जो कि रिक्वायर्ड है। कब, if we have 100 gram of oleum sample, it means ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मान लीजिए H2S2O7, इसमें हमने बताया भी आपको बना कैसे है, इससे और इससे SO3 से मिलकर बना ना,
तो हमारे पास जो ये 100 ग्राम जो सैंपल है ना ओलियम का, इसमें से जो ये वाला जो फ्री SO3 है, ये केवल 9 ग्राम जो वहां पर अपना वाटर है उससे रिएक्शन कर सकता है। उतना SO3 केवल वहां पे प्रेजेंट है। अब आप अगर देखेंगे ध्यान से, जो टॉपिक हम पहले भी पुट कर चुके हैं, मैं दोबारा लिखता हूँ, आप पे गौर करना। नेक्स्ट पेज चलते हैं जरा। हाँ जी, ध्यान दो। टेक अ लुक है। H2O with SO3, it will gives us H2SO4. ठीक है। now remember that what we know in general, if we say we know 18 gram water combined with 80 gram of SO3, because molar mass of SO3 is 80 gram. Okay, in general by the chemical reaction we can say. Okay, but now if we have only 9 gram of water which is combining with the SO3, so what will be the amount of SO3 will be there? Tell me. Definitely it will be 40. How do we know? Very simple है ना, 18 gram water can react with 80 gram of SO3. But when we have only 9 gram of water, it means water mass of water is half, that is reacting. So mass of SO3 also will be getting half definitely. Okay, now then what will be the amount of SO3 will produce there? Definitely it will be 90, because law of conservation of mass will follow here also. Okay, same you can say. Initially when 18 gram of water reacting with 80 gram of water, so it produces 98 gram of H2SO4. But now as only 9 gram water is reacting, so definitely the amount of SO3 required is 40, and when they both combine will form 49 gram of H2SO4. What does it indicate us? It means we can say also like that 109% जो अपने पास टोटल दिया है ना वैल्यू यहाँ पे, इसमें क्या हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं 40 ग्राम फ्री SO3 प्रेजेंट था। ठीक है ना, और इसमें 60 ग्राम क्या हो गया, अब जो अपने पास H2SO4 था। देखिए दोनों मिला के हो जाएंगे 100, और 9 ग्राम वो वाटर एक्स्ट्रा जो कि कंबाइन हो रहा है फ्री SO3 से, तो उसका अमाउंट क्या है 40 ग्राम, तो निकाला हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आप समझ पा रहे होंगे सभी लोग। और जैसे आप अगर देखें फाइनली मान लीजिए, देखिए ये वाटर जुड़ा SO3 से, कितना आ गया 49, और 60 क्या है अपने पास, 60 अपना बचा हुआ। टोटल 100 में से जब 40 है तो बचा 60 है ना, ये ऐड करिए कितना आ जाएगा, देखिए 109 ग्राम आ पा रहा है। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे वही टॉपिक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक आते भी नहीं इसके अंदर। स्मॉल कॉन्सेप्ट स्मॉल क्वेश्चन डेफिनेटली। ओके, so now the question we have, it is 25 gram of oleum sample required 2 gram of water. Okay, now the question is find out percentage of labeling. Find out the percentage of
लेबलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सोचें फटाफट से। 2 मिनट के लिए पॉज करें इस वीडियो को, फिर तो सोचें जरा कैसे पॉसिबिलिटी इसको सॉल्व करने की, आप क्या सोच पा रहे हैं इसके रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा टॉपिक पे, बेसिक पे गौर करें। हमने क्या कहा यहाँ पे, जरा गौर करना, लिखा होगा हमने कहीं ना कहीं, ये रहा। हम क्या करें, देखो यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच इज ग्रेटर देन 100 and the excess number than 100 represent the amount of water in gram that is required to destroy free SO3 completely in 100 gram of oleum sample। समझ में आ गई। अब हमारे को क्या चाहिए, 100 ग्राम चाहिए ओलियम सैंपल, लेकिन कंडीशन है ना यहाँ पे, तो आप देखा, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास कितना है ओलियम सैंपल, यहाँ पे 25 ग्राम। 25 ग्राम जो ओलियम सैंपल है ना अपने पास बेटा, उसमें वाटर कितना रिक्वायर्ड है, ध्यान दो, 2 ग्राम लिखा है देखो यहाँ पे। तो अगर मैं इसको मतलब ग्राम वाइज लेके चल लें, 25 ग्राम था ना, ये 1 ग्राम लेके चलूँ तो हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड, 2/25 ग्राम। बट हमने क्या कहा था, जब हम लेबलिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे को कम से कम वो कितना चाहिए अपना, 100 ग्राम ओरियम सैंपल। हमने कहा ना उसी पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि सारी अपनी। सो इट विल बी 20/25 एंड इंटू 100। इसको सॉल्व करना जानते हैं आप इजीली। तो कितनी आ गई, 8 आ गई। मतलब इफ 100 ग्राम ओलियम विल बी देयर, सो 8 ग्राम वाटर इज रिक्वायर्ड। ओके, तो परसेंटेज लेवलिंग जब हम बात करेंगे, अगर परसेंटेज लेवलिंग कितना हो जाएगा, इट विल बी ओलियम सैंपल और प्लस वाटर, दोनों को ऐड करते हैं बेटा हम लोग, तो तभी तो आती वैल्यू अपनी। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ लेंगे आप लोग मेरे ख्याल से, ठीक है ना। चलिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने लिए, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन वैल्यूज। ओके, सो if we want to know percentage of free SO3, so it will be weight of H2O into 80 and divide by 18, and it can be percentage labeling। देखिए इसी फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना, -100 इंटू 80 डिवाइड बाय 18। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, जब भी हमें निकालना होगा कितना परसेंट फ्री SO3 वहां पर प्रेजेंट है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। इट इज find percentage labeling of oleum in which mole fraction
of free SO3 is 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे करेंगे सोचिए जरा, पॉसिबिलिटी कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? देखिए, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज गिवन टू अस फॉर फ्री SO3, ठीक है ना, तो हम क्या जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन तो क्या हो सकता है 1। ठीक, नाउ वी कैन यूज द अबव फॉर्मूला बट इन अ डिफरेंट मैनर। इट इज परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 ना, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं जरा गौर करिएगा। मोल इनटू मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। बट आप लोगों ने ना नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हमें मास निकालना है तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ना, वही पुट कर रहा हूँ वैल्यू यहाँ, ध्यान देना भाई। मोल फ्रैक्शन दिया मतलब क्या, इट इज द मोल ऑफ, यू कैन से टोटल मतलब मोल ऑफ SO3 इज प्रेजेंट, ओके, एंड डिवाइड बाय टोटल मोल अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, टोटल जो हमारे पास पूरा होता है मिक्सचर SO3 और H2SO4 का, उसका मास मिल जाएगा। तो 0.2 इंटू 80, ये किसका हो गया, फ्री SO3 का, प्लस 0.8। देखिए ये अपना फॉर्मूला था आपको अगर याद हो तो, XA XB is equal to 1 means total mole fraction of a solution maximum can be 1 only, okay, so I am using that formula and into by 100 कर रहा हूं मैं इसको, क्यों, ध्यान देना, इट इज परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि टोटल ओलियम में कितना परसेंट आपके पास सल्फर प्रेजेंट है। तो मैं कैसे निकाल रहा हूं उसको, यहाँ पे जरा गौर करना, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया है बस। आप अगर इसी चीज को ऐसे निकालना चाहें भाई, मास ऑफ फ्री SO3, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो कितना हो जाएगा वो 0.2 इंटू 80। मैं निकालना चाह रहा हूँ मास ऑफ H2SO4 इन ओलियम ना, सिंपल, तो सेम एज इट विल बी ऑल्सो सेम फॉर्मूला, but now mole fraction is 0.8 because total mole fraction can be 1 only and into by 98। तो मैंने क्या किया है जरा गौर करना, अगर मैं आपको वैल्यू लिख के दिखाऊं, मास ऑफ SO3 अपॉन में मास ऑफ SO3 प्लस मास ऑफ H2SO4 एंड इनटू 100, तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास बताइए, इट विल बी परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 की तो वैल्यू आ जाएगी वाली, तो मैंने इसको तो यहाँ पुट कर लिया है पहले डायरेक्टली यहाँ पे मतलब, और इसके इज इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला अपना जो लिखा है ना अपन लोगों ने, परसेंटेज लेबलिंग माइनस 100 इंटू 80 डिवाइड बाय 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 16 अपॉन में, अरे इसको मैंने 92 किया ही नहीं, ठीक है, चलिए, तो
और ये वैल्यू सेम आ जाने वाली है आपकी। लेबलिंग, then it will be -100 into 80 अपॉन में 18। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज लेबलिंग, so its value will be nearly this one। बस कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं सभी लोग मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप इस तरह से, ठीक। चलिए, ये टॉपिक हुआ अपना।